Okay, guys, welcome to this session. This session is about cryptography. Do you know what is cryptography? आप में से किसी को पता है क्रिप्टोग्राफी? जो थोड़ी देर पहले आपकी क्लास हुई थी जर्मन लैंग्वेज की, उसमें आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स इंग्लिश में लिखे गए थे, फिर उसी तरह के कुछ वर्ड्स ट्रांसलेशन में जर्मन लैंग्वेज में भी लिखे गए थे. तो ये भी एक काइंड ऑफ क्रिप्टोग्राफी थी. तो इस सेशन में हम क्रिप्टोग्राफी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्टोग्राफी क्या है. ओके, सो दिस इज़ द डेफिनेशन कि क्रिप्टोग्राफी में आपके पास एक टेक्स्ट होता है विच इज़ कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट. ठीक है, जो कि सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है, प्लेन टेक्स्ट. उसको फिर आप शफल करते हो, उसको इनकोड करते हो डिफरेंट सिंबल्स के साथ. ठीक है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनक्रिप्शन. प्लेन टेक्स्ट को इनकोड करना या शफल कर देना, इस प्रोसेस को फिर हम कहेंगे इनक्रिप्शन. ठीक है, और वो इनक्रिप्शन फिर एज ए साइफर टेक्स्ट के तौर पे हम सेंड करते हैं, और आगे जो उसको रिसीव करता है उसके पास एक की होती है. ठीक है, और वो उस की से उसको क्या करता है, डिक्रिप्ट करता है. ठीक है, और डिक्रिप्ट करके जो पहले वाला ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट होता है उस तक पहुंच जाता है. ठीक है, सो इट्स ए काइंड ऑफ सीक्रेट मैसेजिंग. ठीक है, आप समटाइम्स जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम ऐसे करना चाहते हैं कि किसी तीसरे बंदे को पता ना चले. दो लोग ऐसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि तीसरे बंदे को पता ना चले, सीक्रेटली. ठीक है, तो उसका क्या तरीका होता है कि आप अपनी जो प्लेन टेक्स्ट है या अपनी लैंग्वेज है उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं, और जो दो सीक्रेट बंदे जो आपस में मैसेजिंग कर रहे हैं उनको पता होता है कि इसका क्या मतलब होता है. ठीक है ना, सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड द इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. मतलब कि अपनी लैंग्वेज बनाते हैं. यस, अपनी लैंग्वेज बना लेते हैं. ठीक है ना, secret codes. Very good. Yes, you're right. Okay, so this is the science, and this whole process, this science is called cryptography. It is the science that converts plain text into an unreadable form, also known as ciphertext, by anyone without the decryption key, which restores encrypted ciphertext to plain text. तो ये है आइडिया इनक्रिप्शन का. आई होप आप लोगों को समझ आ गई. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. नो, सो लेट्स गो फर्दर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इजी गेम. Do you know what is anagrams? So anagrams are some words where you just shuffle the alphabets. Okay, so this is just a language game. It's a funny language game. For example, if you have a word silent, and if you just shuffle some of the words, you can also make another word which is listen. And similarly, this one, the heart, you can also make another word, earth. Is this a good interesting game? Okay, and these strings are sometimes called anagram strings. Now I am going to ask you for some anagrams. Okay, I will ask you in the next slide. Okay, panel. Take the anagram of this word. Anyone, there can be many. Make another word from panel. Apple. It's okay. No, yeah. Anyone? Huh? Apple. Apnel. Is this a word? It could be. Yeah, Okay. it could be. Okay, it depends. What about plane? Plane? Panel? Can we make plane from panel? Yeah. Yeah? Okay. Anyone else? Maybe. What about cafe? Face. Face? Very good. Face. There could be many other. Okay. What about part? Art. No. No. Trap? Trap is a good anagram. Okay. What about this one? Weird?
Dry? No. Yeah, it can be dried. Okay, what if we shift E and I? Can we make? Yeah, Wired. yeah, Wired. that could be a word. What about snail? Nails. Good. Meat. Eat? No. Team? Team is a good anagram. What about state? Taste. And what about bread? Beard is also good. Yeah, weird. Okay, so these are just shuffling of the words. Okay, these are anagrams. What about this one? So now this is something written in a shuffling. So now you need to make some good guesses and make an anagram of these words so that it can become more meaningful. Okay. What about this? Math. Math is fun and challenging. Very good. Okay. So this is interesting. What about this one? It has something to do with this picture. सर मुझे पहले लफ्ज़ नहीं आ रहा This one? ये लफ्ज़? नहीं समझ आ रहा Here? मैं नीचे वाला This ये one? नहीं समझ आ रही इसके साथ लिखा है the treasure The treasure hidden. Unlock. unlock the treasure Behind. Hidden. hidden Within. Behind. Hidden. Within. Within. Within or hidden. Okay. Is this okay? Yeah. Now you got it. So this text is now encrypted text. Okay? ये एक encrypted text है जिसको आपने क्या किया है? Decrypt किया. ठीक है? अब अगर दो दोस्त हैं, अगर आपस में सीक्रेट मैसेजिंग करना चाहते हैं तो वो इस फनी वे में कर सकते हैं और तीसरे बंदे को पता नहीं चलेगा कि ये आपस में क्या बात हो रही है. और ये समटाइम्स हम एक फ़नी वे में डिफरेंट लैंग्वेज में भी करते हैं. ठीक है ना, आप वर्ड्स में डिफरेंट कोई से भी वर्ड्स बोल लेते हैं और सिर्फ दूसरा समझ लेता है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन तीसरे बंदे को पता नहीं चलता है कि ये क्या बातें हो रही हैं. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी फनी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज गेम ऑफ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. Okay, now you already have this wheel. इस wheel का जो नाम है साइफर व्हील है और ये एक मशीन है जिससे हम इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर सकते हैं डिफरेंट मैसेजिंग के ज़रिए. और इस डिवाइस का नाम है सीजर साइफर. ठीक है, ये एक ऐसी मशीन है जिससे आपने इनक्रिप्शन करनी है और ये सीजर के नाम से. अब सीजर क्या था? सीजर कौन है? सीजर वाज नेम्ड इन, सो ही वाज लाइक अ रोमन लीडर और पॉलिटिशियन और जनरल हु रूल्ड समवेयर एट दिस टाइम और उसका नाम था जूलियस सीजर. ये कौन सा मंथ चल रहा है? जुलाई का. तो जुलाई का जो नाम है वो किसकी वजह से है? जूलियस सीजर की वजह से. ओके, ये उसकी वजह से है. तो ये भी एक इनक्रिप्शन ही हुई ना. ठीक है, तो जुलाई का नाम इसकी वजह से आया है. अच्छा, अब ये चूँकि एक जनरल था और इसकी काइंड ऑफ अपनी आर्मी थी तो उसमें मैसेजिंग होती थी, तो उसने इसको सीक्रेट वे में करना था ताकि किसी और को पता ना चले. ठीक है, कि कहीं अटैक करना है और कोई भी एक्शन करना है, कैसे करना है, उसके लिए आपने सीक्रेट मैसेजिंग करनी है. तो उसने एक ये अपना साइफर मशीन बनाई थी, या एक काइंड ऑफ ये एक टॉय था उसके पास जिससे वो मैसेजिंग करता था. और ये मैसेज भेजने वाले के पास भी होता था और जिसने रिसीव करना है मैसेज उसके पास भी होता था. और बीच में एक की होती थी जिससे आपने उसको क्या करना होता है? डिसाइफर करना, इनक्रिप्ट करना है और क्या करना है? डिक्रिप्ट करना है. ठीक, तो ये जो साइफर है इसे कहा जाता है
सीजर साइफर। अब आप सबके पास इस वक्त कौन सा साइफर है? सीजर साइफर्स, नेम्ड आफ्टर जूलियस सीजर। ओके, बट इसको समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स। वैसे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे कितने होते हैं इंग्लिश में? 26। इसका 26 के साथ कोई कुछ रिलेशन है, लेकिन उससे पहले हम ये जो क्लॉक होती है हमारी, इन नंबर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। कितने नंबर्स होते हैं एक क्लॉक के ऊपर? 12 होते हैं। लेकिन आपको पता है समटाइम्स ये जो हमारे पास डिजिटल क्लॉक्स होती हैं उनमें जी उसमें आगे वाले नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। और तो उन नंबर्स को फिर हम कैसे समझते हैं, उसका क्या तरीका है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 + 12 है और उसका मतलब होगा 3, तो क्यों मतलब होगा ऐसे? क्योंकि 12 + 3 कितना होता है? 15 है। और जब 15 पे शो कर रही हो कोई घड़ी, तो उसका मतलब क्या होता है? 3 o'clock, ठीक है। और अगर 8 + 11 हो तो क्या आएगा? 19। जो 19 का टाइम होता है वो कौन सा टाइम होता है? 7, ठीक है। और फिर इस लिहाज से ये कौन सा होगा? 4 + 9, ये होगा 1 o'clock, बिकॉज 13 आ जाएगा। और 13 24 आवर्स में, इसका मतलब क्या होगा? 1 o'clock, ठीक है। तो अब हमने नंबर्स की इनकोडिंग कर दी, ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में इनकोडिंग कर दी, और ये हम डेली उसमें देखते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया 12 और 24 नंबर्स के हवाले से। ओके, अब हम 60 नंबर्स के हवाले से कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। उनको उसकी बेस पे अब हमने इसको समझना, ठीक है। और इसी तरह 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में मिनट तो 60 ही होते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा नंबर सिस्टम है जो पुराना, बहुत पुराना, बेबीलोनियंस के टाइम से चल रहा है, जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, पहले इसको समझते हैं। 30 + 40 = 70 होगा, लेकिन 70 कितना प्लस है 60 से? 10, तो उसका मतलब होगा व्हाटएवर, आप सेकंड्स कह लो या मिनट कह लो, बट इसमें जो बेस है, हमारा बेस सिस्टम है, वो 60 बेस सिस्टम, ठीक है, 60 बेस सिस्टम। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? 50 + 18, 68 हो जाएगा तो 8 बचेगा। वेरी गुड। व्हाट अबाउट दिस वन? 49 और 150, 59, 50, 68 हो जाएगा। नहीं 69, 68, 50, 50, 60, इसका भी 8 हो जाएगा। इसका भी क्या होगा? 68, ओके, इसका भी 8 होगा, यू आर राइट, ठीक है ना, सेम। तो अब हमने 24 बेस नंबर सिस्टम में देखा है कैसे एडिशन होती है, और 60 की बेस में। अब हम अल्फ़ाबेट्स में आते हैं, ठीक है। अब अल्फ़ाबेट्स टोटल कितने हैं? 26 हैं। अब 26 के हिसाब से हमने कैलकुलेशंस करनी है। 12 + 15, 20, 27, 27 में तो 26 मॉड में कितना आएगा? उसका आंसर क्या आएगा? 1। और ये क्या होगा? क्योंकि 30 आएगा और 26 के बाद कितना आएगा? वो 4 बच जाएगा। इज दिस ओके? व्हाट अबाउट दिस वन, लास्ट वन? It's 22. Is it 22? 12. 22 + 20 कितना आएगा? सो अब 12 बचेंगे। 26 से आगे जाना है, 26 से आगे जाना है। 26 और 24 बचेंगे। 24 बचेंगे। हाँ। 15, आई थिंक यू आर क्लोज। 15, 16? 14 बचेंगे। 14 Okay, बचेंगे। let's do this 16. She was right. Okay. So ये अंडर मॉड, इसे कहते हैं अंडर मॉड, अंडर
बेस सिस्टम 26, ये एडिशन होती है, ठीक है। तो जब अभी भी हम एडिशन कर रहे होते हैं या कोई भी बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं, वो किसी एक गिवन बेस सिस्टम पे बेस करके कर रहे होते हैं, ओके। अब ये जो 26 है, इससे रिलेटेड हमने अब इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करनी है, ठीक है। इसकी बेस पे की बनानी है, ये जो हमने अभी आपके पास सीजर साइफर आपके पास है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं आपके पास? 26 हैं, 2 व्हील्स हैं, दोनों पे 26 हैं, ठीक है। अब इसकी बेस पे की बनाई जा सकती है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये है कि हम अल्फ़ाबेट्स को नंबर्स असाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 26 हैं, और हम इस की नंबरिंग कर सकते हैं कि जो ए नंबर है, ए है आपके पास अल्फ़ाबेट, उसका क्या नंबर हम रखेंगे? 0। देयर इज़ अ गुड रीज़न टू डू दिस, ओके। देयर इज़ अ वेरी गुड, इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट रीज़न टू डू दिस, कि हम इसको क्या, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0, 1 से नहीं कर रहे, 0 से कर रहे हैं। दिस इज़ हाउ समटाइम्स मैथमेटिशियंस प्ले गेम्स, ओके। समटाइम्स अनोइंग बट दे आर यूजफुल। आप 1 से भी कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, but it's better to do it from 0, okay। so a को आपने नंबर देना है, साइन करना है 0, और फिर z कहाँ पे पहुँचेगा? लास्ट नंबर 25, क्योंकि 26 नहीं होगा, क्योंकि आप अपने काउंटिंग जो है 0 से स्टार्ट किया है। इज़ दिस ओके? सो ये हमने क्या कर दिया, नंबर्स को और अल्फ़ाबेट्स को मैप कर दिया या साइन कर दिया एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ लिंक कर दिया। अच्छा, अब इसकी बेस पे अब हम की बना सकते हैं, ठीक है। 0 की बेस पे भी बना सकते हैं और 26 की बेस पे भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर यही है, तो अब हमारे पास दो हैं इस केस में, 2 सर्कल्स हैं, एक आउटर है और एक इनर है। तो इधर तो जो इनर है उसको स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपके पास जो हैं वो कैपिटल में लिखे हैं, इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब जो रोटेशन हुई है ना, की जो बनी हुई है वो ये है कि 19, जो की है इस केस में वो 19 है। इसका मतलब ये है कि आपने सबसे पहले ए को ए के ऊपर रखना है, ए को किस पे रखना है? ए के ऊपर रख दिया, ठीक है, हाँ, यस, ठीक है। अब उसके बाद आपने इसको रोटेट करना, ठीक है, और ऐसे रोटेट करना है 19, मतलब a + 19 करना है, ठीक है, उस पूरे उसको रोटेट करना है। और अब ये डिपेंड करता है कि आप किस पे करेंगे, इट्स अप टू यू, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बट 19 के हिसाब से देख लें, अगर जो भी होता है वो आपको पता चल जाएगा कि ए के नीचे आ जाएगा टी, ठीक है, बस ए के नीचे टी लेके आना है। अब बेहतर है आप क्लॉकवाइज कर लें, तो ए के नीचे टी आएगा, ठीक है। तो कितने टाइम्स आपने मूव किया, मतलब ये जो नीचे है कितने डिजिट्स आपने आगे मूव किया? अगर देख 19, ठीक है, तो आपने 19 टाइम्स आगे मूव किया है। तो ये की जो होगी ये आपके पास होगी 19 कीज़ होगी। इसकी बेस पे हमने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करनी है। एक इंक्रिप्टेड मैसेज आप भेजेंगे अपने दोस्त को और दूसरे को कहेंगे कि इसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपने जो की यूज़ करनी है वो 19 है, तो वो समझ जाएगा कि आपने पूरे जो व्हील है उसको कितना घुमाना है, 19 स्टेप, और उसके बाद फिर डिक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है 19 हो, आप 26 तक सारे पॉसिबिलिटीज़ कर सकते हैं, ठीक है, और हर दफ़ा ये की चेंज कर सकते हैं। इज़ दिस ओके? ठीक है ना, ऐसा किया जा सकता है। अच्छा, अब हम इससे एक गेम खेलते हैं, कुछ वर्ड्स को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स डू दिस। पहली की जो है उसमें जस्ट मतलब हमने 1 पुट करना है, लेट्स से, मतलब ए को ए के नीचे क्या लेके आना है, बी लेके आना, ठीक है ना। तो अब बताएं, जब पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों को ए के साथ मैच कर लें,
कर लिया। लेकिन उसके बाद अब आपने क्या शिफ्ट करना है? हाँ, ए के नीचे क्या होना चाहिए? बी आ जाना चाहिए। अच्छा, अब मुझे बताओ आप, अगर ए से बी ये आपने इंक्रिप्शन कर लिया, अब एक वर्ड है, ये एक वर्ड लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा? पहला वर्ड है जी, पहला BMBO। बॉम्बू। नो, दिस इज इनक्रिप्टेड मैसेज। अब आपने इसको डिक्रिप्ट करना है प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है? नो, नॉट अब आपने इसको एनाग्राम नहीं बनाना है इसका। डोंट मेक द एनाग्राम आउट ऑफ दिस। डिक्रिप्ट इट बाय यूजिंग दिस। मतलब अच्छा, ऐसे सबसे पहले क्या करना है, मैं अच्छा आपको ऐसे समझाता हूँ। लेट मी, देखिए सबसे पहले ये था कि आपके पास ऊपर ABCD है, हो गया, ठीक है, नीचे भी ABCD है। अब आपने एक A को शिफ्ट करना B के साथ। सो लेट्स से दिस इज B, ठीक है? अब ये आपके पास की बन गई, ठीक है? अब BMBO को देखना है, ठीक है? हाँ, अब आपने अब आपने ये डिसाइड करना है कि कहाँ पे देखना है, ठीक है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा, अब हाँ, ऊपर देखना है, ठीक है ना? ऊपर वाले उसमें देखना है, नीचे वाले आपके वर्ड्स जो होंगे वो इनक्रिप्टेड होंगे, लेकिन ऊपर वाले वर्ड्स में आपने देखना है कि बी के ऊपर क्या है। बी के ऊपर क्या है? बी के ऊपर A है, ठीक है? M के ऊपर क्या है? L है, AL। फिर B क्या होगा? C। B के ऊपर A है। B के ऊपर C है यहाँ पे। B के ऊपर, B के नीचे C है। ओके, सो ओके, हाँ, ये A होगा, ये L होगा, फिर दोबारा A होगा, N। O के ऊपर क्या होगा? N। तो ये क्या बन जाएगा? ALAN। LN। ओके, सो ये क्या बन जाएगा? LN। नाउ डू दिस वन। समझ आ गई? A के नीचे क्यों रखना? हाँ, ये सेम की वही थी, अभी आपने की चेंज नहीं करनी, द सेम की। हाँ, अब आप लोग अपने पेजेस पे कर लो, अगर आपके पास कोई पेज है। यस यस, ये ले। आ गया, क्या है? नहीं, वो पहले वाले का है। एलन आ गया। वेरी वेरी गुड, कीप डूइंग, टेक योर टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। RIN G, वेरी। ट्यूरिंग। तो पहले दो वर्ड्स क्या बने? एलन ट्यूरिंग। कभी नाम सुना है? नो, मैं अभी आपको बताता हूँ एलन ट्यूरिंग का, ठीक है? ओके, अच्छा, ये पहली आप एलन ट्यूरिंग, वी कैन डू इट लेटर, ओके? बट अब आपने जस्ट डिक्रिप्ट किया है, तो इसका क्या मतलब निकला? एलन ट्यूरिंग। ये जो इंक्रिप्शन है, इसको जब डिक्रिप्ट किया है A से B की तरफ जाके, तो क्या बना? एलन ट्यूरिंग। ओके, नाउ दिस की इज ओवर। नाउ लेट्स मेक अनदर की। अब आप A को D पे लेके जाना, ठीक है? नाउ डू द सेम प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट की। ऊपर वाले को देखो। Yes. क्या अगर नीचे E है, हाँ। तो ऊपर कौन सा है? यस, एग्जैक्टली, बट पहले शिफ्ट कर देना है। अब A को D पे लेकर लें, ठीक है? नाउ डू इट। वेरी गुड। BR, नो, देयर, ये हो गया। क्या था? ये जस्ट स्पीक। HROKETHE। नो, B है। आप लोग सही बता रहे हो। मैंने सही किया। ब्रोक। ओके, लास्ट वाला बहुत आसान है। WKH को ब्रोक था? हाँ, वो बस T। एक तूने गलत ब्रोक है। मुझे H मुझे बोला। हाँ, हमारा हो गया था। सर, हमारा ठीक हो गया था, लेकिन H की जगह। वेरी गुड, यू गॉट इट, ठीक है? ब्रोक द। पहले दो वर्ड्स क्या थे? एलन ट्यूरिंग, ब्रोक द। नेक्स्ट A to F जाना है, और फिर आपने इसको डिक्रिप्ट करना है। पहले की
की बनाने के लिए आपको साइफर घुमाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर डिसाइफर करना पड़ेगा। जी जी सही, जी बोला था मैंने। हाँ दैट्स ओके। नेक्स्ट एम, वेरी गुड। एम के बाद ए, वेरी गुड। एनिग्मा, ठीक है, दिस इज एनिग्मा। जब कभी भी कोई हैरान कुन चीज़ होती है जो साइफर डिसाइफर ना हो सके, उसे हम काइंड ऑफ एनिग्मा कहते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी एनिग्मा, एनिग्मेटिक। ओके, लास्ट वन, HTIJ को डिकोड करना, कोड, COD। ठीक है। तो अब ये जो कंप्लीट वर्ड क्या बना फिर, पहले जब हमने एलन ट्यूरिंग ब्रोक द एनिग्मा कोड। ओके, सो इस तरह अब आपको आइडिया हो गया है कि एक मैसेज को इनक्रिप्ट कैसे किया जाता है और डिक्रिप्ट कैसे किया जाता है इस साइफर मशीन से, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह की गेम्स तो आप बहुत सारी खेल सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स ये है कि आप सीजर साइफर से कोई कोडिंग कर लें, फिर बाद में उसको मज़ीद टेक्निकल मुश्किल करने के लिए एनाग्राम्स बना लें, और देन यू कीप प्लेइंग दिस गेम अगेन एंड अगेन, ठीक है। इससे और कॉम्प्लिकेटेड करते चले जाएं। अब इसी तरह का एक और साइफर बनाया था एक और डिप्लोमेट ने, उसका नाम था विग्नर, और उसने भी इससे थोड़ा सा बेहतर फॉर्म में बनाया था, लेकिन उसने उसके लिए पहले से एक टेबल बनाया हुआ था, ठीक है ना। और ये टेबल बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये अल्फ़ाबेट्स का टेबल है, लेकिन ये एक मैथमेटिकल टेबल है, ठीक है, जिसमें आप अल्फ़ाबेट्स को ऐड करते हैं और 26 के हिसाब से, वो जो पहले हमने किया था उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर a + a किया जाए और आंसर a आए, तो इसका मतलब यही होगा कि 0 + 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से a + b आ रहा है, तो इसका मतलब 0 + 1 क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो इस तरह का टेबल जिसे हम एडिशन टेबल कह सकते हैं, ये तमाम अल्फ़ाबेट से आप बना सकते हो, ठीक है। और इस की की बेस पे आप इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर सकते हो। तो ये मिसाल के तौर पे कि अब आप अपनी मर्जी से कोई सी भी बना सकते हो, ठीक है, पहले से ही। मिसाल के तौर पे यू कैन ट्रस्ट मी, दिस इज अ वर्ड, ठीक है। अब इसको आपने इनक्रिप्ट करना है, ठीक है, और इनक्रिप्ट करने के लिए आपने जो की यूज़ करनी है वो कंप्यूटर है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कंप्यूटर में तो इतने तक वर्ड्स हैं, आगे वाले होंगे वो दोबारा से रिपीट होंगे, ठीक है, जब तक कि वो सेम मैच ना हो जाए। तो कंप्यूटर पूरा एक दफ़ा लिखा जाएगा, फिर उसके बाद कॉम्प्यू तक आएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर वाला एक वर्ड है। अब इसको इनक्रिप्ट करना और इस की से, अब कैसे की बनेगी, u + c। अब ये u + c क्या आएगा, ये जो पीछे टेबल मैंने बताया था उस पे जाके आपको देखना पड़ेगा कि u + c का क्या मतलब है, ठीक है। तो u + c उस टेबल में उसका आंसर आएगा a, o + o का मतलब होगा c, और इसी तरह u + m का मतलब होगा g, और इस तरीके से आप ये इस मैसेज को इनक्रिप्ट कर दोगे, इस प्लेन टेक्स्ट को इस फॉर्म में इनक्रिप्ट कर दोगे, ठीक है। अब इसको डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, डिक्रिप्ट करने के लिए भी आपको दोबारा से की वही सेम की यूज़ करनी पड़ेगी जो कि सीक्रेट की है कंप्यूटर की। इसके नीचे दोबारा से आप कंप्यूटर लिखेंगे, ठीक है, इस इनक्रिप्टेड मैसेज के नीचे दोबारा सेम की, और जब वापस ले आएंगे तो वही सेम वर्ड आ जाएगा। तो ये मैसेज आप सेंड करोगे, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं सेंड करना, आपने किस फॉर्म में सेंड करना है, इनक्रिप्ट करके, और जो आगे आपका दोस्त होगा वो क्या करेगा, उसको सेम की से डिक्रिप्ट करके उसको ये ऐसे समझ लेगा। तो ये आपकी सीक्रेट मैसेजिंग ऐसे हो जाएगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। बट इसके लिए क्या चाहिए, आपको एक टेबल चाहिए, वो जो 26 अल्फ़ाबेट्स का टेबल है ना, एडिशन टेबल, वो चाहिए। तो ये मैथमेटिक्स वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। ओके, अब इस तरह के बहुत सारे हैं जो आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये
थोड़ी देर पहले जो था ये एक बड़ा इनक्रिप्टेड कोई मैसेज है, जब आप इसको डिक्रिप्ट करोगे तो इसका ये मतलब होगा, इसका मतलब होगा मैथमेटिक्स इज कूल, साइफर इज ए लेब्रिंथ और द इनक्रिप्शन जीनी इज आउट ऑफ द बॉटल। ठीक है, अच्छा अब ये जस्ट लैंग्वेज गेम्स फॉर फन नहीं है, ठीक है, पीपल यूज दैम। जैसे कि हमने सीजर साइफर के केस में देखा था, सीजर अपनी जो कम्युनिकेशन करता था अपने आर्मी के थ्रू, वो क्या ऐसे इनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड फॉर्म में करता था ताकि किसी को बीच में पता न चले। और ये काम तो अक्सर डिक्टेटर्स करते ही हैं, जैसे कि नाजी पार्टी और हिटलर ने भी यही काम किया था। उन्होंने भी इस तरह की एक मशीन बनाई थी, उस मशीन का नाम था एनिग्मा मशीन, और वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि उसको कोई भी इतनी आसानी से डिक्रिप्ट नहीं कर पाता था, और उससे वो सीक्रेट मैसेजेस करते थे कि अब हमने ये मूव करनी है, अब हमने ये अटैक करना है और ये नहीं करना है। ठीक है, तो अब मैं बस इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ और फिर हम इस पे एंड करते हैं। तो ये जो ये क्वाइट मॉडर्न और बड़ा सोफिस्टिकेटेड मशीन थी। इसमें अब आपने टाइपिंग से करनी है, ठीक है ना, और दोनों मैसेज सेंड करने वाले और रिसीव करने के पास ये मशीन होनी चाहिए। इधर से आप टाइप करेंगे एक मैसेज, तो वहाँ से जो दूसरे के पास मशीन होगी तो वहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिट अप हो जाएंगे, ठीक है ना, रोशन हो जाएंगे। तो फिर वो आपने फ़ौरन से नोट करने हैं और उधर से वो आपने उस मैसेज को डिक्रिप्ट करना है। बट इसके नीचे बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड रोटर सिस्टम था, जिससे इस तरह की जो घूमने वाली चीज़ें हैं वो घूमती हैं और उससे एक मैसेज इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होता है। और ये बड़ा फेमस था, इट्स कॉल्ड वेरी एंड ऑल्सो वेरी एनिग्मेटिक, और इसको क्रैक करना बड़ा मुश्किल था। और उसके लिए फिर ये है कि एक मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग, उसको हायर किया गया ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और पूरी एक टीम बनाई गई और उन्होंने काफ़ी साल लगा के इस मशीन को डिक्रिप्ट कर लिया। उनके पास मशीन नहीं थी, वो एनिग्मा कोड वाली मशीन नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको बना दिया। इसलिए एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी मशीन इसको डिक्रिप्ट करने के लिए बनाई थी। ठीक है, ये क्यों रुक गया था, इसको नीचे कीजिएगा। हाँ, सो इतनी बड़ी मशीन बनानी पड़ी उसको उन मैसेजेस को डिक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो आप ये समझ लें कि ये पहला एक एडवांस्ड कंप्यूटर था जो एलन ट्यूरिंग ने बनाया था। ठीक है, इसके ऊपर एक मूवी भी है, वो आप ज़रूर देखें, इट्स कॉल्ड इमिटेशन गेम। ठीक है, इमिटेशन गेम। ठीक है, और इसकी वजह से ब्रिटेन और एलाइड फोर्सेस जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने में कामयाब, इमिटेशन गेम, ठीक है, वो कामयाब हो गए, और ये जो वॉर थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो थोड़ी सी जल्दी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो अच्छा, अब ये मॉडर्न डेज़ में भी हम इन इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं उनको पता है, जब कभी भी आप किसी नए बंदे से कम्युनिकेशन शुरू करते हैं तो ऊपर लिखा होता है दिस कन्वर्सेशन इज़ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। ठीक है, कि ये सेव्ड होता है। ठीक है, कोई तीसरा बंदा इसको डिसाइफर नहीं कर सकता अनलेस के वो किसी तरीके से कर लें। ठीक है, तो और बहुत सारी जो ऑनलाइन वर्ल्ड है इसमें, जैसे बिटकॉइंस हैं, ये भी सीक्रेट सारे इनकोडेड और इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की ही गेम होती है। ठीक है, बट अब हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं। पीछे एक छोटी सी ये वीडियो देखते हैं और फिर इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, आई होप यू पीपल एंजॉयड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी लेटर। So let's see this video related to this one. आवाज़ ऊंची कीजिएगा ज़रा, और ये लाइट ऑफ कर दें। So ये 2-3 मिनट की वीडियो है। You have just an idea about this